Hello students, we are going to continue the first chapter in bookkeeping and accountancy. The name of the first chapter is Introduction to Bookkeeping and Accountancy. In the first part, we have already seen the introduction of bookkeeping, evolution of bookkeeping, meaning and definition of bookkeeping, and then we have started with basic accounting terminologies. Four accounting terms we have seen in the first part. The accounting terms were transactions, goods, profit and loss. Now we are going to continue with the next accounting term. The next fifth accounting term is accounting year. Now, accounting year, it is a period of 12 months for which accounts are maintained and closed by the proprietor. Accounting year है तो year is of 12 months. 12 months रहेंगे और इस 12 months में अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है एंड एट द एंड ऑफ द 12th month द बुक्स ऑफ अकाउंट आर क्लोज्ड बाय द प्रोप्राइटर. प्रोप्राइटर का मतलब है ओनर ऑफ बिजनेस. नाउ ये जो अकाउंटिंग ईयर है फॉर इनकम टैक्स पर्पस, accounting year always starts on 1st April and since it is of 12 months so it will end on 31st of March. So accounting year it is a period of 12 months. ये 12 महीने का होता है and in this 12 months books of account are maintained और उसको क्लोज किया जाता है at the end of the year. End of the year is 31st March. 31st मार्च को प्रोप्राइटर जो ओनर रहता है बिजनेस का वो बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज किया जा करता है. और इनकम टैक्स पर्पस के लिए ये जो अकाउंटिंग ईयर है ये हमेशा स्टार्ट हो जाता है 1st अप्रैल से और बिजनेस का ईयर एंड जो होता है it always ends on 31st of March. Now after accounting year जो next accounting term है it is called as the life blood of the business. अगर ये नहीं रहेगा तो बिजनेस कर ही नहीं सकते एंड ये अकाउंटिंग टर्म है कैपिटल. सो कैपिटल इज कॉल्ड एज द life blood of the business. Without capital a business cannot function. कोई भी बिजनेस करने के लिए हमें कैपिटल का हमेशा जरूरत होता है. So what is capital? Capital is the total amount invested into the business by the owner is called capital. अभी कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे का जरूरत पड़ता है और जो पैसा बिजनेसमैन बिजनेस को देता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उस अमाउंट को हम लोग कैपिटल बोलते हैं. सो कैपिटल ये ऐसा पैसा है जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है और ये पैसा इन्वेस्ट कौन करता है तो इट इज इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर दैट इज ओनर ऑफ द बिजनेस. और ये कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए हमेशा एक इक्वेशन का यूज होता है एंड दैट इक्वेशन इज एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर द लाइबिलिटी. एसेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस और लाइबिलिटीज का मतलब होता है अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस टू द आउटसाइडर्स. सो कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है
एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस करने का है. सो एक्सेस ऑफ एसेट्स over the liabilities is called as capital, and the equation for this is capital is equal to assets minus liability. Now capital ये हमेशा liability होता है business के लिए, and this liability is payable by the business enterprise मतलब business firm to the owner at the time of closure of the business. Now इसका मतलब क्या है? There are two different persons. एक होता है businessman और दूसरा होता है business. Businessman क्या करता है? वो पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में और वो पैसा एंड तक बिजनेस के अंदर ही रहेगा. उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं. नाउ whenever business is going to come to an end, जब बिजनेस बंद होने वाला रहता है 10 साल के बाद या 20 साल के बाद, अगर बिजनेसमैन को ऐसा लगता है कि उसको बिजनेस में अभी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो बिजनेसमैन क्या करेगा? बिजनेस को बंद करेगा और एंड आफ्टर क्लोजिंग द बिजनेस जितना भी पैसा रहेगा वो बिजनेस में से वापस से लेगा. सो फॉर अ बिजनेस a capital is always a liabilities which he has to pay to the owner or proprietor of the business. So capital is a liability of the business as this amount is payable by the business enterprise to the owner at the time of closure of the business. So that was capital. So capital means, remember, it is the amount invested into the business by the owner. And capital calculate करने के लिए जो equation use होता है, that is assets minus liabilities. Next accounting term हम लोग देखते हैं, that is drawings. जैसे कैपिटल में अमाउंट को इन्वेस्ट किया जाता है, मतलब पैसा दिया जाता है बिजनेस को. ड्रॉइंग्स में एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है. सो इन ड्रॉइंग्स व्हाट हैपेंस? द अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स इज विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज एंड दैट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स. सो अगर कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, मतलब बिजनेस को अगर दिया जाता है, तो ड्रॉइंग्स में क्या होता है? बिजनेस में से पैसे को विड्रॉ करते, इधर कैश विड्रॉ किया जाता है या फिर गुड्स विड्रॉ किया जाता है फ्रॉम द बिजनेस. और ये पैसा विड्रॉ कौन करता है? ओनर. और जब भी ओनर पैसा विड्रॉ करेगा अपना पर्सनल यूज के लिए, खुद का यूज के लिए, तो उस अमाउंट को हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं. So drawing is that amount of cash or goods which is withdrawn from the business by the owner for personal use. आप जब भी ड्राइंग का मीनिंग लिखोगे तो उसमें ये पर्सनल यूज आना चाहिए, तो ही ड्राइंग का मीनिंग कंप्लीट हो जाएगा. इसका एग्जाम्पल है, सपोज अगर बिजनेसमैन को अपने बच्चे का अगर फीस देना है और वो फीस का पैसा देने के लिए अगर उसने बिजनेस में से पैसा निकाला है, देन दैट इज कॉल्ड एज अ ड्रॉइंग. अगर सपोज उसको अपना मेडिसिन लेके आना है खुद के लिए और वो मेडिसिन लेकर आने के लिए अगर उसने बिजनेस में से पैसा विड्रॉ किया हुआ है, तो उसको भी हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं, क्योंकि उसने पैसा विड्रॉ किया हुआ है उसका खुद का यूज के लिए. Now we will see the next accounting term. Now next accounting term is debtors. In debtors the B is silent. हम कभी उसको स्पेल debtors करते नहीं है. Okay, we spell it as debtors. Now debtors के लिए हम पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं. Now suppose there are two persons are there, Mr. A and Mr. B.
नाउ मिस्टर ए इज सेलिंग द गुड्स टू मिस्टर बी. ए गुड्स सेल कर रहा है बी को एंड ही इज सेलिंग द गुड्स ऑफ ₹10,000. और ये 10,000 का गुड्स बेचने के बाद बी क्या करता है, वो प्रॉमिस करता है कि वो पैसा पे करेगा आफ्टर 30 डेज. ए ने गुड्स सेल किया हुआ है बी को, 10,000 का गुड्स बेचा है और बी ने क्या किया, उसको प्रॉमिस किया कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, आई विल पे द अमाउंट आफ्टर 30 डेज. तो अभी ये ट्रांजैक्शन कौन सा हो गया है, दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. क्रेडिट ट्रांजैक्शन में हम पैसा जो है मनी और मनीज वर्थ इट इज रिसीवेबल और पेएबल. पैसा अभी तक मिला नहीं है. अमाउंट विल बी रिसीव्ड आफ्टर 30 डेज. अभी ये एग्जाम्पल में मनी किसके लिए रिसीवेबल है और कौन से पर्सन के लिए मनी पेएबल है. नाउ सिंस ए हैज सोल्ड द गुड्स, सो फॉर ए अमाउंट इज रिसीवेबल, उसको पैसा मिलने वाला है. अभी उसको पैसा किसके पास से मिलने वाला है, ही हैज टू रिसीव द अमाउंट फ्रॉम मिस्टर बी. उसको बी के पास से पैसा रिसीवेबल है. नाउ बिजनेस में जब भी अमाउंट रिसीवेबल रहता है किसी के पास से भी, तो जो सामने वाला पर्सन है वो पर्सन बन जाएगा डेटर फॉर मिस्टर ए. ए के बुक में मिस्टर बी विल बी कॉल्ड एज अ डेटर. नाउ ये बी को डेटर क्यों बोलते हैं, बिकॉज बी इज अ पर्सन फ्रॉम हुम मनी इज रिसीवेबल. ए के लिए मिस्टर ए के बुक में मिस्टर बी विल बी कॉल्ड एज अ डेटर, अ पर्सन हु हैज टू पे to the business for getting goods and service on credit. B ने goods purchase किया हुआ है credit basis पर, तो he has to pay the amount and whenever he has to pay the amount he will be called as a debtor in the book of Mr. A. Debtor का और एक मीनिंग है, डेटर इज अ पर्सन हु ओस मनी टू द बिजनेस. ओस का मतलब होता है टू पे, मतलब डेटर को पैसा पे करना है, ऑब्वियसली उसको अमाउंट पे करना है मिस्टर ए को. एंड वन मोर मीनिंग इज देयर, अ डेटर इज अ पर्सन फ्रॉम हुम मनी इज रिसीवेबल. सो दिस वॉज डेटर. ए के लिए मिस्टर बी विल बिकम डेटर. तो बी के लिए मिस्टर ए कौन बन जाएगा, बी के बुक में इन द बुक ऑफ मिस्टर बी ए विल बिकम अ क्रेडिटर. बी के लिए मिस्टर ए जो है वो क्रेडिटर बन जाएगा. नाउ हु इज अ क्रेडिटर, क्रेडिटर इज अ पर्सन टू हुम अमाउंट इज पेएबल. बी को पैसा देने का है टू मिस्टर ए, तो बी के लिए मिस्टर ए बन जाएगा क्रेडिटर. नाउ हु इज अ क्रेडिटर, अ पर्सन टू हुम बिजनेस हैज टू पे फॉर गेटिंग गुड्स और सर्विस ऑन क्रेडिट. या उसका और एक मीनिंग है क्रेडिटर्स का, अ क्रेडिटर इज अ पर्सन टू हुम बिजनेस ओज मनी. ओके, मिस्टर बी को पैसा देने का है टू मिस्टर ए, सो बी के बुक में मिस्टर ए बन जाएगा क्रेडिटर. या उसका सिंपल मीनिंग याद रखो डेटर का, डेटर इज अ पर्सन फ्रॉम हुम मनी इज रिसीवेबल एंड क्रेडिटर इज अ पर्सन टू हुम अमाउंट इज पेएबल. सो दैट वाज रिगार्डिंग डेटर एंड क्रेडिटर. We will see the next accounting term, that is bad debts. Now A के लिए मिस्टर B जो है वो डेटर है. डेटर है मतलब क्या है कि उसके पास से अमाउंट रिसीवेबल है. अभी B ने प्रॉमिस किया था
that he will pay amount after 30 days. सो अगर ए जाता है बी के पास पैसा कलेक्ट करने के लिए आफ्टर 30 डेज, बी क्या बोलता है कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, यू कम आफ्टर अनदर 30 डेज, और 30 दिन के बाद आओ, मैं आपको पैसा पे करूंगा. ये क्या बोलते हैं, ठीक है चलो, आई विल कम आफ्टर 30 डेज. अगेन आफ्टर 30 डेज, दैट इज आफ्टर 60 डेज, अगेन ही गोज टू मिस्टर बी हु इज अ डेटर एंड ही इज आस्किंग फॉर द मनी कि मेरा 10,000 रुपया वापस करो. आपने गुड्स परचेज किया था, 30 डेज का बोला था, 60 डेज हो गया है, अभी मेरा पैसा वापस करो. बी अगेन गिव्स द सेम रीजन दैट आई डोंट हैव द मनी, मेरे पास अभी पैसा नहीं है. यू अगेन कम आफ्टर 30 डेज. ये ऐसा 30 डेज करके पूरा एक साल निकल जाता है, बट बी इज नॉट गिविंग मनी. बिजनेस में मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस जो होता है वो हमेशा क्रेडिट बेसिस पे होता है, एंड दे हैव टू ट्रस्ट ईच अदर, तो ही बिजनेस होगा. नाउ ए बी जो पर्सन है who was going to pay the amount after 30 days, पूरा एक साल हो गया है, अभी भी उसने पैसा दिया नहीं है. सो जो पैसा बिजनेस में मिलने ही नहीं वाला है, जो पैसा 30 डेज के बाद मिलने वाला था, एक साल हो गया है, 365 डेज हो गया है, अभी तक मिला ही नहीं है, और वो शायद आगे मिलेगा भी नहीं. दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज बैड डेब्ट्स. So what is an bad debts? Bad debts is an amount which is irrecoverable from a debtor. Debtors के पास से जो पैसा मिलने वाला था, अगर वो पैसा बिजनेस में मिलेगा ही नहीं, then that amount is called as bad debts, and bad debts is a loss to the business. So bad debts is an irrecoverable amount from a debtor. क्योंकि डेटर के पास से हमें वो पैसा मिलने वाला था, एक साल हो गया है, अभी भी मिला नहीं है, एंड ए ने होप्स छोड़ दिया है कि अभी उसको वो पैसा मिलेगा ही नहीं. सो ए के लिए वो अमाउंट बैड डेब्ट्स है, मतलब वो अमाउंट उसके लिए लॉस है, दैट इज बिजनेस के लिए लॉस है. सो वी हैड सीन फ्यू अकाउंटिंग टर्म्स, दैट इज सबसे पहला हमने अकाउंटिंग ईयर देखा था. Accounting year comprise of 12 months, and for income tax purpose this accounting year always starts from 1st April and it ends on 31st of March. The next accounting term जो हमने देखा था, that was capital. So capital is the amount which is invested into the business by the owner. और कैपिटल का इक्वेशन है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, एंड कैपिटल इज ऑलवेज अ लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस. नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म जो हमने देखा था, दैट वाज ड्रॉइंग्स. सो ड्रॉइंग इज अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज. Next accounting term we had seen, that was debtor. The easiest meaning is debtor is a person from whom money is receivable. The next was creditors. Creditor is a person to whom amount is payable by the business. और सबसे लास्ट अकाउंटिंग टर्म हमने देखा था, that was bad debts. An irrecoverable amount. Irrecoverable means not recoverable, पैसा जो हमें मिलेगा ही नहीं. An irrecoverable amount from a debtor is known as bad debts, and it is a loss to the business. Now we will see next accounting term, that is trading concern. Concern means firm, company. ट्रेडिंग का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग. ये ऐसा कंपनी है जो प्रोडक्ट बाय करता है और सेल करता है.
ना कोई भी पर्सन बिजनेस क्यों करता है, बाइंग एंड सेलिंग क्यों करता है? बाइंग एंड सेलिंग इज डन with an intention of earning a profit. So trading concern ये एक ऐसा business concern है established with an object of earning profit by selling goods. कंपनी क्या करेगा, गुड्स बेचेगा, and behind selling the goods their intention is to earn a profit. And trading concern is also called as commercial organization, हम उसको बोलते हैं, और we call it as profit making organization. आप टीवी के ऊपर जितना भी एडवर्टाइजमेंट देखते, दे ऑल आर कंपनीज. उन लोग एडवर्टाइजमेंट इसलिए करते बिकॉज दे हैव टू सेल द गुड्स, एंड गुड्स बेचने के पीछे उनका एक ही इंटेंशन रहता है, that they have to earn a profit. So ये सब कंपनीज को हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग कंसर्न, whose main aim is to earn a profit. The next accounting term is not for profit concern. नाम से ही पता चलता है ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिनका एम is not to earn a profit. उनको प्रॉफिट अर्न नहीं करना है. So if their aim is not to earn a profit, then why this organization is established? This organization is established to provide service to the society. उनको सर्विस प्रोवाइड करना है सोसाइटी के लोगों को, फ्री में उनको कुछ काम करना है. जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स रहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस आर देयर. उन लोग फीस नहीं लेते, उन लोग पैसा नहीं लेते लोगों से. देयर मेन एम इज टू प्रोवाइड सर्विस. कुछ क्लब्स होते हैं जैसे लायंस क्लब है, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग फ्री सर्विस टू द सोसाइटी. सो व्हाट इज एन नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न? इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन not established for making profit. उनको प्रॉफिट अर्न नहीं करना है, but for rendering means giving services to the society.